this session, even after you complete this session, you would be able to access this session again. There will be so many people who will not be able to join today, so this session will be recorded and it will be sent to you. That does not mean that you have to leave now. Stay there. Yeah. Okay. Chalo, I want to ask you this question: how many of you have completed the course? So let me have a poll. Okay. Let me launch the poll. Yeah, this one. Yeah. Just not this one. Not this one. Yeah. So how many of you have completed my 4-episode course? 4-episode course. That is the question that I want to ask you. Click on yes or no. Yes or no. Yes if you have completed the course. No if you have not completed the course. Click on yes if you have completed the course. Click on no if you have not completed the course. Yes or no. Yes or no. Yes or no. Yes or no. I want everyone to give the fast answer so that we have a limited time. I have to cover so many things. Okay. Okay. 27%, 73%. So let me end the poll. Let me share the results with you. 27% of the people out of you have completed the course. 73% of the people have not completed the course. Why? Is it too hard to complete? Okay. So I understand that some of you have joined recently, but if you have joined for since past 1 week, please complete the course, because there is a lot of learning. This course is just a start. A lot of people ask me that why I have created this course. This course I have created so that you should understand two things. Number one, what is Indian classical music in real terms? Okay, what the glimpse of Indian classical music, the beauty of Indian classical music, जो कहीं पे भी सिखाया नहीं जा रहा है, right? So this is the first thing that you have to in-depthly understand. Even before you start learning, you have to understand what is this Indian classical music and how it is sung. And that does not mean that this course is absolutely basic. No, this course is very deep, and deeply you will understand. Maybe you will not be able to sing in just 4 days. I'm the last person on this planet to tell you कि 4 दिन में आप संगीत सीखोगे. नहीं, it's not possible. But 4 days and all the concepts that I have explained you, these are enough for you to understand. And if you watch it 1, 2 or 3 times, you will understand what is Indian classical music. And without understanding anything, I don't believe in this, that without understanding you can do something. You need to have a proper understanding on that particular topic, and then you can do it. Agree? Right? This is how I have learned all my life. Secondly, the second reason why I have created this course is so that you can understand me. So that you can understand me. Right? My methods of teaching are completely different to the entire world. The whole world is teaching in a particular way, and I am teaching in this particular way. And there are reasons why I teach in this way. There are reasons why I don't follow that method or that method or that method. And there are reasons why my students are able to sing wonderfully. So that is why you need to understand me. मेरे गुरुजी कहा करते हैं कि संगीत सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गुरु. If you do not have a good guru, you cannot sing or you cannot learn Indian classical music. Yes or no? Right? संगीत अगर आपको सीखना है तो अच्छे अच्छे लोगों का गाना सुनो. उनके अच्छे लोग उनमें से जिनका गाना आपको पसंद आता है उनको पकड़ो, और एक बार उनको अपना गुरु मान लिया तो उसके बाद जब तक वो नहीं बोलते तब तक उनको छोड़ना नहीं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लोग क्या करते हैं, आज कहीं यहाँ पे गए, कल वहां पे गए, कल वहां पे गए, कि यहाँ पे थोड़े और लोग मिलेंगे, यहाँ पे थोड़े और लोग मिलेंगे, नेटवर्क बिल्ड करेंगे.
So that is not the right way of learning music. In order to learn music, you need to understand what the how your guru is teaching you. Are you comfortable with that? Are you comfortable with his language? Are you comfortable with his aura? Are you comfortable with everything? And then only, once you select that particular guru, you should never miss them. You should never leave that. So these are the two reasons why I have created this course. So I hope you get it now. Okay. Now I want to have some chit chat with you, have some conversation with you regarding what have you not understood, or what problems are you facing while you're watching the course, or even if you have not watched the course, even if you have just joined, what are the main problems that you are facing, and then we will cover that deeply in this session. Yeah, you can ask me, you can unmute yourself. I have allowed everyone to unmute themselves, so you can go ahead and ask me. Sir, Yes. first of all, I am Alok Tripathi, and let me compliment you. आपका पहला ही वीडियो मैंने देखा, you kind of broke so many myths. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत स्ट्राइक किया, and the way you told कि music is actually your own manifestation, you are presenting yourself. और दूसरी जो बहुत अच्छी चीज मुझे ये लगी कि every next moment is unknown. वो ब्यूटी है इसका, वो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा. इनफैक्ट मुझे पहली बार मैंने ये चीज किसी से इतना स्ट्रक्चर्ड वे में सुना. तीसरा जो आपने अभी, जो मैंने आपका सेकंड एपिसोड देखा, उसमें आपने श्रवण पे, सुनने पे बहुत ध्यान दिया है. मेरी तो एक प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है, जैसे मैं, अगर मुझे आप कहेंगे तो मैं मतलब सा से लेके अगले सा तक आपको मैं सुना दूंगा, और प्रोबेबली सही पिच में, टोन में सुना दूंगा. लेकिन मैं गाना जब सुनता हूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये जो नोट उन्होंने लगाया ये कहाँ पर है, ये सा है कि ध है कि प. ये मुझे समझ में आता है कि ये थोड़ा हायर है, ये थोड़ा लोअर है, इस स्टेज में है, तो उसको कैसे करें, ये प्रॉब्लम एक मुझे समझ में आता है कि अगर मैं वो समझ लूं तो मैं शायद अच्छा गा भी लूंगा, और मे बी हारमोनियम पे थोड़ा बजा भी लूंगा. Very ये nice मुझे question. लगा कि ये कैसे करें. Very nice question. Let me answer this. See, so Alok ji has touched two aspects. Okay. The first thing is that he is saying कि आपने ये बहुत अच्छे से ये आपने ये किया, स्ट्रक्चर्ड वे में बताया कि what are the myths of Indian classical music, कि क्या है. तो ये मैंने कहा, I have learned this in a very hard way. अभी मैंने कोर्स में बताया कि नहीं, ये मुझे भी याद नहीं, बहुत दिन हो गए मैंने मेरा ही कोर्स देख के. ये कैसे हुआ एक्चुअली, 3-4 महीने संगीत सीखने के बाद, क्योंकि तब तक गुरुजी ने ये सब चीजें बताई नहीं थी मुझे. 3-4 महीने संगीत सीखने के बाद मैंने एक पैम्फलेट आया था मेरे पास मुंबई में, यहाँ पे, कि शास्त्रीय गायन स्पर्धा, सुगम गायन स्पर्धा वगैरह. तो इट वाज अ कंपटीशन, सो म्यूजिक कंपटीशन. सो ऑल आई न्यू वाज इट इज अ म्यूजिक कंपटीशन. और तो फिर मुझे तो आता है, तो मैं वहाँ पे चला गया और वहाँ पे इंक्वायर करने लगा. तो मैडम को बोला मैंने, ये लो मेरे फीस, और मुझे कंपटीशन में भाग लेना है. 3-4 महीने के बाद मुझे कंपटीशन में भाग लेना है. और मैडम ने बोला कि कौन से कंपटीशन में आपको भाग लेना है. डू यू वांट टू टेक पार्ट इन सुगम संगीत, डू यू वांट टू टेक पार्ट इन अभंगा, डू यू वांट टू टेक पार्ट इन बॉलीवुड, और डू यू वांट टू टेक पार्ट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. तो मैंने बोला कि ये क्या होता है. ये क्या होता है कि बॉलीवुड में मैं नाट्य संगीत गा रहा हूँ, गजल गा रहा हूँ, कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक गा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो गा रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, जाओ तुमको, यू आर डिसक्वालिफाइड करके. तो फिर मैंने एक दोस्त को मैंने फोन किया, यार ये क्या होता है, ये कि मैं अभी जो गा रहा हूँ ये ख्याल बंदिश वगैरह ये क्या है. तो उसने बोला कि ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है. तो फिर वो जगजीत सिंह साहब वगैरह गाते हैं, मेहदी हसन साहब वगैरह गाते हैं, हरिहरन गाता है, वो क्या है. तो वो बोला वो गजल है.
तो फिर वो हृदयनाथ मंगेशकर गाते हैं, लता मंगेशकर गाते हैं, वो सब क्या है? तो फिर वो अभंग गाते हैं, एक तो विट्ठल का वगैरह नाम लेंगे, या कृष्ण राम वगैरह इनका नाम लेंगे, या गणपति का नाम लेंगे, वो भजन है, भगवान का नाम लिया तो। अगर वो प्रियसी प्रेमिका, या फिर वो छोड़ के चली गई वगैरह, अभी ना जाओ वगैरह, अभी ना तो जाओ ठुमरी छोड़ है। के, तो फिर वो सुगम संगीत है, भावगीत है। भक्ति गीत अलग, भावगीत अलग, गजल अलग। और अगर मूवी में कोई गाना लगा है तो फिर वो सिने गीत है। मूवी से गाना उठाया हुआ वो बॉलीवुड है, बॉलीवुड इंडस्ट्री अलग है, मतलब सिने गीत है। देन आई रियलाइज कि बाप रे, इतना सब कुछ होता है, और मैं बेवकूफों की तरह मैं कंपटीशन में भाग लेने जा रहा हूँ। सो आई लर्न इट इन अ वेरी हार्ड वे। सेकेंडली, मैंने सेकेंड एपिसोड में सबको बोला कि सुनने के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। अभी when I say that listening is the most important thing in Indian classical music or in any music, when I say that listening is the most important thing, I mean critical listening. Critical listening मतलब क्या है? अभी जैसे हम चलते हैं, तो जब शुरू शुरू में हमको चलने नहीं आता है, तब आपके मम्मी पापा आपका हाथ पकड़ के चलाते हैं, राइट? हाथ पकड़ के चलाते हैं। ऐसे तो नहीं होता है कि ऐसे ही हम चलने लग जाए। तो हाथ पकड़ के हम चलते हैं ना उनका, फिर अब धीरे धीरे हाथ छोड़ते हैं। वैसे ही इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग, हाथ पकड़ के सुनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कदा तानपुरा लगाता हूँ। सा धने सा म ग म धनि ध मगर सा। तो अभी समझो, मुझे एक आधा गाना गाना है। बैरनिया रतिया सौतनिया नाय पिया तरसत जिया, बैरनिया रतिया सौतनिया, बैरनिया रतिया सौतनिया नाय पिया तरसत जिया, बैरनिया। सो बै, तो ये जो सुर है, ये कौन सा सुर है, ये मुझे आपको बताना पड़ता है शुरू शुरू में। अगर आपको दिखाई नहीं देता है, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, अगर आपको गलत सुनाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स होते हैं अपने माइंड में, कि इसकी वजह से हम उस सुर को उसी सुर के हिसाब से नहीं देखते हैं, तो फिर उस लेयर को हटाना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आएगा नहीं खुद से, आलोक जी, एंड टू एवरीवन। संगीत आप खुद से सीख नहीं सकते हो, ये लिखवा के रखो मेरे से। वो बोलते हैं ना, मैं आई एम सेल्फ मेड सिंगर, सेल्फ में, पता नहीं वो कैसे करते हैं। संगीत जो है, इतना अच्छा संगीत, ये आप खुद से नहीं सीख सकते। उसके उसको गुरु का हाथ होना आपके ऊपर, वो बेहद जरूरी है। बिकॉज वो, उनको पता होता है कि आप आपके हिसाब से, मतलब आप जिस तरह से गा रहे हो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको ये पता नहीं होता है। उन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स को हैंडल किया हुआ रहता है, ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट। उनके पास उतना पेशेंस होता है कि वो आपको सह ले। मुझे तो मेरे गुरुजी ने बहुत सह लिया है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत गा पा रहा हूं। सो ही नोज दैट वेरी वेल। तो संगीत आप खुद से नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको आपके गुरु जिस तरह से बोलते हैं कि बैरनी या साधनी ध मगरे सारे ध सा, अभी साधनी द बैरनी या सा, ऊपर जाना है, तो ये आपको आपके टीचर, आपके गुरु बोलेंगे, तब जाके आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपके माँ बाप आपके हाथ
हाथ पकड़ के आपको चलाना सिखाते हैं, वैसे आपको सुनने भी सिखाना पड़ता है. क्रिटिकल लिसनिंग इज वेरी क्रिटिकल. एंड अगर आपको वो ठीक से सुनाई दिया, सुनने आया, तो आपको गाने भी आ जाएगा. सो गाना इज द नेक्स्ट स्टेप. समझ में आया सबको? राइट? एनी अदर क्वेश्चंस? Yeah, यस. good morning. गुड Good morning, मॉर्निंग. sir. गुड मॉर्निंग. Yeah, my सतनाम. name is Satnam Kaur. सतनाम कौर. जी यस जी, बोलिए. जी सर. मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मुझे कुछ टाइम पहले मैंने ज्वाइन किया था रेगुलरली. कुछ वीक्स या एक मंथ 1.5 मंथ मैंने प्रैक्टिस किया, बट फिर छूट गया मेरे से. सो बट मैं सर संडे को अटेंड नहीं कर पाती बिकॉज आई हैव स्पेशली ऑन संडेज हमारा कुछ इवेंट्स चलता है, तो Right. मैं बड़े मुश्किल से भी ज्वाइन किया है, जस्ट वेटिंग फॉर द इवेंट टू स्टार्ट. मैंने कहा थोड़ा देर ज्वाइन करती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो थैंक यू सो मच. इट्स रियली वेरी नाइस टू लर्न. मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीखा है, बट माइंड में रजिस्टर नहीं होता है. जब दोबारा याद करते हैं तो याद आ जाता है, फिर भूल जाते हैं. राग भी सीखे बट फिर भूल जाती हूँ. एंड ये नया तरीका है आपका सिखाने का. दैट्स अमेजिंग. सो आई एम एंजॉइंग लर्निंग, बट टाइम नहीं दे पा रहे हैं. तो एक तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये टाइम थोड़ा संडे मीटिंग्स का या तो थोड़ा चेंज कर दे, या कोई डेट चेंज कर दे, या नाइट टाइम में कर दे, इवनिंग टाइम्स में कर दे, तो थोड़ा इजी हो जाएगा कनेक्ट करने के लिए. मॉर्निंग संडेज आर स्पेशली वेरी बिजी, तो नहीं कर पा रहे हैं. या तो फिर सेशन सुनेंगे आपके जो रिकॉर्डेड है. Sure, sure. Definitely like to be Sure. part of the live sessions. Okay, next class will not be on Sunday then. Next class will be in the weekends and in the evenings. 7:30, 8 k, हाँ, 7:30 evenings or में 8 p.m. Okay? absolutely. Yeah. So next class we will keep अगर like that. everyone is comfortable with that, that will be nice. Sure. So there will be some अभी people who will not be just comfortable नहीं with है. that timing also. लेट इवनिंग ठीक है. Yeah, late के evening 8 is fine. पास हाँ, करिए, लेट क्योंकि ऑफिस में हम लोग को लेट भी ना इवनिंग भी 7 चलेगा. 7:30 हो जाता या है. तो 8 मुझे एब्सोल्युटली. तो लगता है कि सब लेट लोग घर आ जाएंगे. 8:30 9 भी कर सकते हैं. आफ्टर द डिनर मे बी people are little free Okay. after Okay. 9 p.m. So we will या conduct shift. So that conduct will any be day at 9 p.m. yeah Okay, I'll let you know. ठीक है, सही है. Yeah. Great. yeah Yeah. okay. So thank you so much. तो अभी कनेक्टिविटी बनेगी तो I again I'll start learning again. So looking Sure, forward sure. to more lessons. Sure. Yeah. And plus, Thank you. my regular classes Yeah. are in Thank the you so evenings. much. जी. My regular classes are in the evening 7:30 to 8:30. Okay. Yeah. So these are 9 times a week. जनरली So आपका if you इवनिंग नहीं know, रहता. Okay. my classes are 9 times a week. It's not just 1 time or 2 times a week. It's 9 times a week Okay. in the evenings, and in the evenings and in the afternoons. It's 9 times a week. So you will get to know that in the 4th episode. Okay. ठीक है. चलो. Sure, sir. So So I'll stay connected, but Yeah. right now I'm just exit कर रही हूँ sir, because I'm going to attend my event. sure. Thank you so So much. Ashish is asking, See you next in the what is next meeting. critical think? What is then critical in critical listening? Then throw some more light. Yes, sure. That is what we are going to do. That is what we are doing. क्योंकि क्या होता है, जब तक समझ में नहीं आता कि गाना कितना मुश्किल है, तब तक समझ में ही नहीं आता है. क्रिटिकल क्या है ये समझ में ही नहीं आता है अगर क्रिटिकल चीजें दिखाई नहीं पड़ी तो. राइट. ठीक है. सत्यवान जी, बागेश्वरी गाओ. सो वी आर लर्निंग राग बागेश्वरी. ओके, चलो. सर एक डाउट था सर. यस. सर मेरा फर्स्ट सेशन है ये. हेलो, आई एम या ऑडिबल. या सर एक फर्स्ट सेशन था आपके साथ सर. एक्चुअली मैंने सर जनवरी से सितार सीखना शुरू किया, तो माय पर्पस वाज टू अंडरस्टैंड दी मतलब बैकग्राउंड, सो दैट मुझे उसमें हेल्प मिले. तो ये अभी मुझे क्लियर नहीं है पूरा कि कहाँ तक मुझे और कैसे हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग दी वोकल्स और लिसनिंग, क्योंकि मैंने देखा है जो मैं सुन लेता हूँ वो बज भी जाता है, और जो तो वो चीज थोड़ा सा मतलब क्लियर करेंगे क्या? मेरा पर्पस बेसिकली सितार के लिए था एक क्लास ज्वाइन. तो अगर सितार भी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, पहले तो सुनना पड़ेगा वो ट्यून क्या है, वो बजने के लिए, वो समझने के लिए. राइट. सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि
Your voice is just a medium through which you are presenting that music. So, चाहे आप अपने गले से गा रहे हो या सितार से गा रहे हो या हारमोनियम ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, that is what. आपको समझेगा. Listen to this. हाँ सत्यवान जी गाओ चलो. सा लगाओ. सा हाँ, तानपुरा सुन के बराबर लगाओ, थोड़ा सा नीचे जा रहा है. सा धनी सा धनी सा. Now listen to this carefully. He is listening and he is singing. धनी सा गा रे सा. धनी सा गा रे सा. रे रे सा नि धा. रे रे सा नि धा. धा नि सा. धनी सा नि सा गा रे सा. नि सा गा रे सा. ग म धा नि धा. ग म धा नि धा. ग म धा नि सा नि धा. ग म धा नि सा नि धा. प धा प धा नि धा म. प धा प धा नि धा म प धा ग. म प धा ग. रे सा. रे सा. अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि राग, इन राग, इफ यू आर न्यू लिसन टू दिस, राग में बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं. राग इज अ ट्यून एंड ट्यून में बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं. तो फिर ये प धा नि धा म, ये एक फ्रेज हो गया. ग म धा नि सा नि धा, ये एक फ्रेज हो गया. रे रे सा नि सा धा नि धा, ये एक फ्रेज हो गया. मगर सा. तो ये बहुत सारे फ्रेजेस हैं. इन फ्रेजेस को चलते एक ट्यून बन जाती है, उसको हम राग बोलते हैं. राइट? एंड व्हेन वी टेक दैट राग, people are enjoying. Yeah, let me respectfully mute you so that I can. So इन phrases को जब हम collectively गाते हैं और अपने मन से जो निकलता है वो हम गाते हैं, तो फिर वो अपने ख्यालों से निकला हुआ राग होता है. And that is the performance of Indian classical music. And that is why it is
वी एब्सोल्युटली डू नॉट नो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है. अपने मन में क्या निकलेगा ये तो हम भी नहीं जानते हैं. सो दैट इज व्हाई लिसनर आल्सो एंजॉयज इट एज वेल एज दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज परफॉर्मिंग, ही इज आल्सो एंजॉयिंग इट, क्योंकि क्या निकलेगा पता नहीं. ग म ध नि सा नि रे सा नि ध म ध नि सा ध नि सा ग रे सा रे रे सा नि ध प ध नि ध म प ध ग म ग र सा. Critical listening is to find out this tune and to remember this tune. कि when you critically listen to it, तो आपको वो ट्यून याद रह जाएगी. वो जो ट्यून है वो समझ में आ जाएगी, क्योंकि म प ध ग करने का है, म प ध नि सा करने का नहीं है. म प ध नि सा किया नहीं है मैंने, म प ध ग किया है. तो म प ध नि सा कर नहीं सकते, ग म ध नि सा कर सकते हैं, म प ध ग कर सकते हैं, ग म ध नि सा रे सा नि ध कर सकते हैं. ध पे हम रुकते हैं, रे पे रुक रहे हैं, ग पे हम रुक नहीं रहे हैं. सिर्फ इस फ्रेज में हम म प ध ग, तो इस ग पे हम सिर्फ इसी फ्रेज में रुक रहे हैं. राइट? तो कहाँ हम रुक रहे हैं, कहाँ हम फास्ट जा रहे हैं, किस सुर का प्रोपोर्शन कितना है, तो ये सब देखना मतलब क्रिटिकल लिसनिंग है आशीष जी. तो जब आप सितार बजाओगे तो आप रे पे रुकोगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पीड में गाओगे. राइट? अभी इमेजिन करो कि आप खाना बनाते हो कि नहीं. कभी खाना बनाना बहुत अच्छी बात है, मैं खाना बनाता हूँ. तो जब आप खाना बनाते हो तब आप समझो सब्जी बना रहे हो, कोई अच्छी सी आपकी फेवरेट सब्जी बना रहे हो. तो जब आप सब्जी बना रहे हो तब आप उसका प्रोपोर्शन होता है कि सब्जी आप इतना ले रहे हो, उसके साथ आप समझो ओनियंस और टोमेटोज इतने इतने ले रहे हो, एक एक या दो दो. फिर उसके बाद नमक आप इतना सही डाल रहे हो, हल्दी इतनी सी डाल रहे हो, तीखा इतना डाल रहे हो. तो सबका एक प्रोपोर्शन होता है कि नहीं. ऑयल आप इतने 2 ही चम्मच डाल रहे हो, जितना आप सब्जी डाल रहे हो उतना आप ऑयल डालते हो क्या? नहीं, क्योंकि अलग अलग प्रोपोर्शन होता है. वैसे ही एक राग में उन सुरों के अलग अलग प्रोपोर्शन होते हैं. ग म ध नि सा नि रे सा रे रे सा नि ध म ध नि सा नि ध प ध नि ध म ग र सा नि सा ग रे सा. समझ में आ रहा है? Who would want to sing in this particular scale? I'll change the scale later. It's a male scale, so I want you to try this along with me. I want to try, sir. मैं भी करूंगा सर. एक एक करके करेंगे जो भी करेंगे. ओके या ठीक है. 1 plus LE2 1 1 1. Yeah. This is Bagesri only. We are learning Rag Bagesri. Bagesri is a beautiful rag. ठीक है? Yeah. Sir. हाँ गाओ. Sir, Can you switch on your sir, camera, please? गाओ. सा Sa. very good, very good, very good. So the first thing is singing this sa.
ध नि सा ग रे सा धानी सा ध नि सा धानी सा खुल के गाओ, तू घाबरून गाऊ नका. आणि सरळ बसा, सरळ. इफ यू मेरे से मराठी निकलता है, आई एम वेरी सॉरी. आपको मराठी समझ में आता है? नहीं आई एम Okay, sorry. बंगाली स्पीकिंग पर्सन. हाँ, ओके ओके. सीधा बैठिए, मतलब क्या है, सीधे सीधे से अच्छा आवाज आता है. ध नि सा ग रे सा धानी सा ग रे सा. वेरी गुड. ध नि सा म धानी सा मा. अभी ध नी सा, देखो ध नी सा ठीक से लगाओ, तो लिसन टू इट केयरफुली, दैट इज क्रिटिकल लिसनिंग. ध नि सा म धानी सा सा किधर है? ध नि सा, ये सा लगना चाहिए वहां पे. धानी सा म मा. हाँ. समझ रहे हो? ग म ध नि ध मा धा नि ध निधा. ग म ध नि सा गम धनी सा. ग म ध नी ठीक से लगाओ. गम धनी ग ठीक से लगाओ. देखो दैट इज, मतलब मैं बोलता हूँ ना कि हैंड होल्ड कैसे कैसे करते हैं, तो ये सुनने में हैंड होल्ड करना पड़ता है, गाने में भी हैंड होल्ड करना पड़ता है. ग म ध गम नि धनी सा सा. ग म ध नि सा. गम धनी सा. नहीं, वो ग ठीक से लगाना पड़ेगा. वो ग, उस ग को मत छोड़ो. ग म ध नि सा ग. ग नहीं, वो म हो गया. ग गम धनी सा. हाँ, वेरी गुड. रे सा नि धा. रे सा नि धा रे सा नि सा. देखो दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल लिसनिंग. रे सा नि सा कर रहा हूं मैं, राइट? रे सा नि धा. रे सा नि धा. प ध नि धा म. प नि धा मा. म प ध ग. मा प ध ग. म प ध ग. मा प ध ग. रे सा. रे सा. रे ठीक से लगाओ. रे रे सा. सा. हाँ, वेरी गुड. बहुत अच्छे, अच्छा है. तो देखो वो सुन सुन के कितना अच्छा गा रहे हैं बराबर.
right? Very nice. Keep it up. Yeah. Thank you, sir. हाँ, ये जो मेरे जो ये क्लासेस है, ये जब भी होते हैं आ जाया करो सब लोग, है ना? ऐसे नहीं कि एक दो क्लास आए और निकल गए, कोई फायदा नहीं होता है ना? बेस्ट वे Sir, this is possibly the first time I have sung anything. I mean, maintaining the grammar and all. हाँ, I used to sing only the film songs, just others sing it at their homes. So this is for the first time. So I really liked your session. I have just joined last week, and the thing that you told, and that Hindustani classical music really relieves you from stress. That's really an eye-opening thing, and I really knew it when I started listening, but I could not articulate it. But you articulated it in such a nice way. So thank you very much for that, and I'm enjoying this session. Thank you. yes, wonderful. I hope my sessions are useful to you. Yeah. Very useful, sir. ठीक है क्या? Who wants to sing? Rajashekar ji, can you try? एक एक करके गाओ. सा हाँ, मैं बोलता हूँ वैसे गाओ. अभी हम कुछ तान्स लेंगे, ठीक है? म ग म ग रे सा नी सा. म ग रे सा नी सा. क्या बात है, वेरी गुड. म ग रे सा नी सा. म ग रे सा नी सा. म ग रे सा, ऐसा मत करो. म ग रे सा नी सा, रे सा नी सा. म ग रे सा नी सा. म ग रे सा नी सा. हाँ. म ग रे सा नी सा. पद नि द म प ध ध म ग रे सा नी सा. पद नि द पद नि ध. म प ध ध म ग रे सा नी सा. म प ध ध म प ध ध म ग रे सा नी सा. म प. हाँ, let me write this. It's very simple. देखो, पध नि ध म प ध ध म ग रे सा नी सा. पध नि ध म प ध ध म ग रे सा नी सा. म ग रे सा नी सा हमको पता है. अब सिर्फ इसके ऊपर मैंने और थोड़ा सा ऐड कर दिया. पद नि ध म प ध ध म ग रे सा नी सा. पद नि ध म प ध ध म ग रे सा नी सा. Too long, sir. मैंने लिखा हुआ Can't है. remember all this. पद. तो अगर समझो, अगर कोई बड़ा तान आपको मिलता है, तो उस बड़े तान को आपको रिमेंबर कैसे करना है? हाउ टू रिमेंबर अ बिग तान? Very simple. Divide it into 2-3 parts. You will remember it. पध नि ध. गाओ. पद नि ध. म प ध ध म ग रे सा नी सा. म प ध ध म ग नि सा रे सा. म प ध ध म ग. म प ध ध म ग. रे सा नी सा. रे सा नी सा. देखो, आ गया. आदित्य, कैन यू ट्राई? Yes, I have. गाओ. But right now, पद नि ध. I don't know what to. मैं बोलता हूँ ऐसे गाओ. पध नि ध. म प ध ध म ग पध रे सा नी नि सा. ध. पद नि म ध म प ध ध म ग रे सा नी सा. पद नि ध म प ध ध म ग रे सा नी सा. पध नि ध म ध. म प ध ध म ग रे सा नी सा. सब लोग इतने बार सुन रहे हो. म प ध ध हाँ, म सुन ग सुन के रे वो आ सा नी जाएगा. सा. पद नि ध म प ध ध म ग रे सा नी सा.
Pada pada nisa निधा pada dha पध पद निधा pada pada nidha म प ध द म ग रे सा नि सा ma pa dha dha ma ga ni sa re sa म प ध द म ग रे सा नि सा रे सा नि सा re sa ni sa हाँ पद पद नि द म प ध द म ग रे सा नि सा पद पद नि द म प ध द म ग रे सा नि सा गाओ pada pada nidha pada nidha ma ठीक है पद पद नि द pada pada nidha म प ध ध ma pa dha dha म ग रे सा नि सा ma ga re म ga ni ग sa रे सा नि सा पद पद ma नि ga ध re म sa प ni ध sa द म ग रे सा नि सा pada pada ni sa ma pa ni म प ध द म ग रे सा नि सा ठीक है आ जाएगा दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड से डिफिकल्ट था ना बाय द वे yes, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कुछ हाँ एकदम सिंपल सिंपल दे देंगे इनको ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा मोटिव डिफिकल्ट से डिफिकल्ट दूंगा और वो आ जाएगा क्योंकि okay. when you get exposed to beautiful things then only you can do beautiful things only Yes, when you yes. get exposed to beautiful things वो बेसिक्स में ही बैठे रहे तो इस दुनिया में करोड़ों लोग बेसिक्स के चलते ही बैठे हैं वहां पे ही बैठे हैं बेसिक्स 10 साल से है ना I'm trying from हाँ last year. या अरे आप तो लास्ट ईयर से ट्राई कर रहे हो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं 20 साल से ट्राई कर रहे हैं 20 साल से फिर भी नहीं आता है हाँ हाँ मुझे भी थोड़ी मुश्किल हो रही है थोड़ा सा वो मुश्किल जैसे भी होने दो ना मुश्किल phrases भी आ रहे हैं तो मैंने कहा ये कब कहा कि ये गाना मुश्किल नहीं है बहुत मुश्किल है लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग है ना आपने कभी ये सोचा है कि आप क्या करना ज्यादा पसंद करते हो आसान चीज जो कि बोरिंग है या मुश्किल चीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं मुश्किल चीज जो interesting मुश्किल चीज जो इंटरेस्टिंग है राइट है। आई एम अ वेरी अनडिसिप्लिन्ड पर्सन इन माई लाइफ टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सुबह उठने के लिए मुझे बहुत आलस आता है बट संगीत मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डिसिप्लिन में करता हूँ क्योंकि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग आसान चीज जो कि बहुत बोरिंग है मतलब झाड़ू मारना मैं कभी झाड़ू नहीं मारता हूँ घर में क्योंकि वो बहुत आसान है लेकिन बोरिंग है राइट तो राइट राइट जो मुश्किल होता है लेकिन इंटरेस्टिंग होता है उसको हम करते हैं एंड दैट इज वाई लर्निंग म्यूजिक इज इजी बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग एंड दैट इज वाई वी डू इट दैट इज वाई इट इज इंटरेस्टिंग ऐसा है पद पद नि द म प ध द म ग रे सा नि सा ग म ध द ग म ध नि सा नि रे सा म ग रे सा नि रे नि सा नि द प द नि द म प ध द म ग रे सा ग म ध नि रे सा ध नि सा म ग रे सा नि रे नि द प द नि द म ग म ध नि द प म ग रे सा ग म ध नि रे सा म ग रे सा ध नि सा म ग रे सा नि रे सा नि द प द नि द म ग रे सा ग म ध नि सा म ग रे सा ग म ध नि सा ग म ध नि सा ध नि सा ग म ध नि सा म ध नि सा ध नि रे सा नि द प द नि द म ध नि द प म ग रे सा सा ध नि द म ग रे सा रे सा ध नि द म ग रे सा ग म ध नि रे सा म ग रे सा रे नि द प द नि द म ध नि द प म ग रे सा ध नि रे सा नि द प म ग रे सा
सा सा सा सा सा सा सा सा ध नि ध सा। कितना इंटरेस्टिंग है। मैं ये दिन भर करता रहता हूँ, दिन भर मेरा चालू रहता है। मग मग मद नि द ध नि नि स द ध नि द मद नि स ध नि रे स नि स ध नि द मद स नि ध नि रे स रे नि स ध नि द मग मद नि स नि द प म ग रे स नि स ध नि स ग म द नि स ध नि स म ग रे स नि स ध नि म द ग म द नि स ध नि द द म ग रे स नि स स स स स स स स स ध नि ध सा। Where to get phrases of for भाग्यश्री? संगीत जो है, अरुण राज जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। नंबर 1, संगीत जो है ये गुरुमुखी विद्या है कि इवन इफ आई गिव यू इन राइटिंग यू विल नॉट बी एबल टू सिंग इट, क्योंकि कहाँ पे स्टॉप लेना है, कैसा कौन सा फ्रेज कैसे गाना है, ये लिख नहीं सकते। सो जैसे मैंने कोर्स में बोला हुआ है कि संगीत ये लिखने पढ़ने वाली बात है ही नहीं। संगीत जो है वो सुन के गाने वाली बात है। समझ में आ रहा है अरुल जी? ये लिखने पढ़ने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अभी समझो म प ध ग, तो मैं आपको सिर्फ दूंगा म प ध ग, लेकिन म प ध ग ये जो मींड है ये मैं आपको कैसे लिख के दूंगा, आप मुझे बताओ। ये गुरुमुखी विद्या है। कोई भी दूसरी चीज मैं आपको बोल सकता हूं कि ये पुस्तक पढ़ो, या फिर ये मूवी देखो, या फिर ये कोर्स देखो, लेकिन संगीत एक ऐसी चीज है जो गुरुमुखी विद्या है। ये गुरु के मुख से ही ग्रहण होती है। ग म द नि सा नि रे सा म ग रे सा नि सा नि द प द नि द म प द द म ग रे सा नि सा ग म द नि सा 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 द नि सा सा द नि द द म द नि सा म द नि सा नि रे नि सा नि द प द नि द म द नि सा नि द म ग रे सा नि सा ग म द नि सा। आशीष जी आप गाओ। पद पद नि द म प ध ध म ग रे सा नि सा, गाओ। पद पद नि ध म प ध ध म ग रे सा नि सा। नहीं पध पध नि ध, सारे सुर बराबर लगाओ। पध पध नि ध पध 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 नि ध नि ध म प ध ध म ग रे सा नि सा, म प ध ध म ग रे सा नि सा। म प ध ध म ग रे सा नि सा, म प ध ध म ग रे सा नि सा। पध पध नि ध म प ध ध म ग रे सा नि सा। पध पध नि ध म प ध ध म ग रे नहीं सा नहीं नि नहीं नहीं सा। म प ध ध, वो ध के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, एंड दैट इज क्रिटिकल लिसनिंग। समझ में आ रहा है आशीष जी? आप ही ने ये प्रश्न पूछा था। प ध नि ध म प ध ध, वो ध पे जाना, दैट इज क्रिटिकल लिसनिंग एंड दैट इज क्रिटिकल सिंगिंग। प ध नि ध पध पध नि ध म प ध ध म प ध ध म ग रे सा नि सा, म ग रे सा नि सा। ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि सा, गाओ। ग म ध नि ग म, सर फिर से रिपीट कर ग दीजिएगा। म ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि सा, आरो औरो ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि सा, ग म ध नि सा नि ध प म ग रे ग म ध नि सा ग म ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा नि सा, सा नि ध प म ग रे सा नि सा। हाँ, ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि सा,
ग म ध नि ध सा नि ध प म ग ग म रे ध नि सा ध सा नहीं चाहिए, ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि सा। ग म ध नि सा नि ध प म ग नि सा रे सा। हाँ ठीक है, वेरी गुड, चलो। नो प्रॉब्लम। क्या है, आप सब लोग जो हो, ये आप मेरे से भी होशियार हो, क्योंकि पहले दूसरे क्लास में मुझे इतना भी नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो गुरुजी बोलते थे गाओ, मैं तो बोलता था नहीं रे बाबा ये इतना क्या है। तो आप लोग मेरे से भी होशियार हो, आप यू आर ट्राइंग दिस स्टफ एंड यू आर ऑल्सो 70-80% राइट। हाँ, हम होशियार हैं, यही दिक्कत है। ठीक है, वेरी नाइस, आप लोग कर तो रहे हो। हाँ थैंक यू सर। फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई किया था वोकल्स में, एंजॉयड इट सर। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। इसको छोड़ो मत, ये जो आपकी जिद है ना, आप सबकी, आप में ये नहीं होता तो आप इस मीटिंग में नहीं आते। ऑनेस्टली देयर आर 300 पीपल इन दिस दैट ग्रुप। आई नो दैट दिस मीटिंग कैपेसिटी इज 100, सो आई नो दैट हाउ मेनी पीपल विल कम, आई हैव दैट एनालिसिस। तो आप में ये जो जिद है संगीत सीखने की, इसको आप छोड़िएगा मत, चाहे कुछ भी हो। मैंने एक बार ठान लिया था संगीत सीखने का, तो सीखना ही है बस, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये मुझे आना ही चाहिए। इतना इतना बेहतरीन है कि यू हैव टू चेज योर लव। वो आप ऐसा समझो कि आप संगीत को चुन नहीं सकते हो, संगीत आपको चुनता है। तो जब वो अंदर से आएगा ना, तो संगीत जब आप में भर जाएगा, तो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हो। तो ये बात है ना, टिका के रखना जितना हो सके, अच्छी आदतें लगवाओ, ऐसा है। यस, not knowing is the right step. Wonderful, Ruchi. Not knowing is the right first step towards learning. Unlearn to learn. Very true. And that is why मैंने जो फर्स्ट एपिसोड बनाया है, that is complete unlearning. Complete unlearning. सारे मिसकंसेप्शंस, आरो औरो पकड़ चल, ये सब गए। That is the first step. Absolutely right. Wonderful. ये सतीश जी गाओ। नमस्ते सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, औरंगाबाद से। एक मिनट, आई एम नॉट एबल टू फाइंड यू। अच्छा, यू आर इन अ कार। यस, मैंने कार रुकी है बाजू में, ओके, घर जा रहा था। मैं महाराष्ट्र से हूँ, औरंगाबाद से हूँ, महाराष्ट्र औरंगाबाद। येस येस, सर मी मराठीमध्ये पण बोलू शकतो जर आपण म्हणत असाल तर। नहीं आप हिंदी में बोलिए तो बाकी लोगों को समझ जी, में आ ओके जाएगा, नहीं तो मैं मराठी ओके बोलता हूँ। ओके, नो 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 प्रॉब्लम सर। हाँ, एक्चुअली मुझे हाँ, बहुत गाना पसंद है, मेरी बहुत इच्छा है गाना सीखने की, और मैं जैसा समय मिलता है वैसे कोशिश करता हूँ, सीख भी रहा हूँ जैसा हो सके, यूट्यूब पे देख के सुन के। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो मेरी आपसे विनती है कि मैं ज्वाइन करना चाहूंगा, और आपके साथ कुछ आप कहे तो गाने की कोशिश करूंगा। श्योर, आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल, आप सब लोग मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, तो मोर देन वेलकम। जी जी इस गाने का मेरा क्लास कैसा होता है, ये सब, ये सेशन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। जी जी नॉट जी, वरी। यस यस गाओ। यस। गमदनि सा, गमदनि सा। गमदनि सा, वेरी गुड। गमदनि सा, गमदनि सा नि ध प म ग रे सा नि सा। गमदनि सा नि ध प म ग रे सा नि सा। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो, सुन के बराबर, उनके इसमें फिल्टर नहीं है। म ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि सा।
मदनी सा नि ध प म ग रे सा नि सा सा ध नि ध म ग रे सा नि सा सा ध नि ध म ध नि सा नि ध म सा सा नि ध ध म नि ध म ग रे सा नि सा सा नि ध म ग म ग रे सा नि सा सानी ध तो हम करते ही है, सा ध नि ध सा ध नि ध म ग रे सा नि सा म ग म ग रे सा नि सा नि सा ग म ध ध ग म ध नि सा नि रे सा नि ध प म ग रे सा नि सा नि सा ग म ध ध म ध नि सा नि ग सा म ग ध म ध ध ध ग म नि सा ग म ध ध ग म ध नि सा नि रे सा नि ध प म ग रे सा नि सा ध नि सा रे सा नि ध म ग रे सा नि सा ध नि सा नि रे सा ध नि सा रे नि सा ध नि सा नि रे सा ध नि सा नि रे सा ध नि सा नि रे सा नि ध प म ग रे सा नि सा नि ध प म ग रे सा नि सा हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी तान है। नि सा ग म ध ध ग म ध नि सा नि रे सा नि ध प म ग रे सा नि सा नि सा ग म ध ध ग म नि सा ग म ध ध ग म ध नि सा नि रे सा ध नि सा नि रे सा नि ध प म ग रे सा नि सा नि ध प म ग रे सा नि सा नि सा ग म ध ध ग म ध नि सा नि रे सा नि ध प म ग रे सा नि सा। अभी गाओ पूरा। नि स- नि सा ग म ध ध ग म ध नि सा नि रे सा नि ध म ग रे सा नि सा हाँ चलेगा, निदा मगर ऐसा भी चलता है। नि सा ग म ध ध ग म ध नि सा नि रे सा नि ध म ग रे सा नि सा, ये भी चलेगा। नि ध प ध नि ध म प ध ध म ग रे सा नि सा ग म ध नि सा म ग रे सा नि सा ग म नि ध सा नि रे सा म ग रे सा नि सा नि रे सा रे नि सा नि ध म ग म ध नि सा ध नि ध ध नि सा सा ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा नि सा ग म ध नि सा म ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि सा 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 ध नि रे सा। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी भाग्यश्री। ये समझ आनी चाहिए गुरुजी हमें। आ मुझे लगता जाएगा। है कि ये समझ आनी, जो चाहे जो दिमाग में आ रहा है वो गले से निकले। हाँ ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास में मुझे इतना भी नहीं आता था जितना आपको आ रहा है, तो आप लोग मेरे से होशियार हो। नहीं सर, प्लीज हमें थोड़ा गाइड कीजिए और क्लास के बारे में लास्ट में बताइए, क्लास ज्वाइन करने के बारे में। हाँ, ये नहीं, ये इस सेशन में थोड़ा सा गाना वगैरह होने के बाद, आई एम नॉट डन येट, तो मुझे गाने की बहुत इच्छा है आपसे। तो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जिनको जिनको मेरा क्लास ज्वाइन करना है, हाउ कैन यू डू इट। ओके, सर एक आध बंदिश भी सुनाइए भाग्यश्री में, छोटी बंदिश छोटी सुनाऊंगा मैं, आपको अभी बंदिश ही सुनाने वाला हूँ। हाँ, सा, ये मेरे गुरुजी की कॉम्पोजिशन है। सा, एक ताल में है। ओके, अभी उसके लिए आपको एक ताल समझ में आना पड़ेगा। तो एक ताल कैसे है, एक ताल कंसिस्ट ऑफ 12 मात्रास, 12 मात्रा। ठीक है, सो हाउ डू यू काउंट दोज 12 मात्रास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या किया मैंने, देखो, हर टाली या खाली पे मैं 2 मात्रा काउंट कर रहा हूं। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे सेशन में से इतना भी अगर लेके चले गए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हर सेशन में मैं, हर ताली में मैं 2 मात्रा काउंट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ गए इतना? तो अभी काउंटिंग ताली और खाली मैं कहां पे दे रहा हूं ये समझते हैं। 1 2 तो मैं फर्स्ट ताली दे रहा हूं 1 2 3 4, तो टाली खाली, फिर वापस टाली खाली, फिर टाली टाली, फिर वापस टाली खाली, टाली खाली, टाली टाली, टाली खाली 2 बार और टाली 2 बार। ठीक है, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गरिमा जी, can you do this? Can you start your video? अरे गरिमा इज अ स्मॉल, छोटी बच्ची है। हाय, यू आर वेरी क्यूट। गाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक मिनट, आपने सिर्फ एक ताली दी। आपको क्या करना है? वेरी सिंपल। 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8 9 10 9 10 11 12। 11 12। हाँ, बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। करो। गाओ गाओ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, प्रैक्टिस करके आओ। सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतना आसान है। कौन करके बताएगा मुझे? नरसिंह जी, आप करो, देखते हैं। Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, आप में से कितने लोग हैं? वेरी गुड, ये बराबर है। जिन्होंने होमवर्क किया है मेरा। सेकंड एपिसोड के एंड में मैंने होमवर्क दिया था। आप में से बहुत कम लोगों ने किया है। जिन्होंने होमवर्क किया है उनको एक बंदिश गिफ्ट मिला है। सो वो त्रिताल की टाली का होमवर्क है, वो मुझे करके अभी भी भेज सकते हो और मैं आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूं। किसी ने किया है बाय द वे होमवर्क करने वाले कौन कौन है? विघ्नेश्वरी जी है जो कि अभी शी इज नॉट देयर। और किस किस ने होमवर्क किया है आप में से? सेकंड एपिसोड के बाद आप में से किसी ने नहीं किया है? मुझे तो बहुत सारे होमवर्क्स आए हैं। सब लोग सेकंड, अच्छा यू एनरोल्ड यस्टरडे, ठीक है ठीक है। तो सब लोग होमवर्क करके आओ, राइट? तो उससे क्या होगा, आपकी जो ताल का बेसिक नॉलेज है वो पक्का हो जाएगा। एक ताल अगर आपको आ गया तो बाकी सारे ताल भी आ जाएंगे, क्योंकि काउंटिंग करने आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मैं एक ताल बजा रहा हूं। धिन धिन धागे त्रिक तू ना, कट्टा धागे त्रिक धी ना, धिन धिन धागे त्रिक तू ना। अरज मोरी मानो तुम, अरज मोरी मानो तुम, अरज मोरी मानो तुम। दीन दयाल दुखियान के दुख दूर करो तुम, अरज मोरी मानो तुम, अरज मोरी मानो तुम। दीन दयाल दुखियान के दुख दूर करो तुम, अरज मोरी मानो
तुम अरज मोरी मानो तुम राखो अब मोरी लाज राखो अब मोरी लाज तुम तो गरीब नवाज तुम तो गरीब नवाज आया हूँ तुम्हारे द्वार आया हूँ तुम्हारे द्वार रसदास अरज मोरी मानो तुम अरज मोरी मानो तुम दीन दयाल दुखियन के दुख दूर करो तुम अरज मोरी मानो तुम अरज मोरी मां राखो अब मोरी लाज राखो अब मोरी लाज राखो। ये ऐसे भी काउंट कर सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राखो अब मोरी लाज राखो अब मोरी लाज तुम तो गरीब नवाज तुम तो गरीब नवाज आया हूँ तुम्हारे द्वार आया हूँ तुम्हारे द्वार रसदास अरज मोरी माँ नो तुम अरज मोरी माँ मग मद नि सा नि रे सा मग मद नि रे सा नि सा नि ध पद नि ध म पद ध मग मग रे सा नि सा ग मद नि सा अरज मोरी माँ मग मग रे सा नि सा अरज मोरी माँ नि ध पद नि ध मग रे सा नि सा अरज मोरी माँ ग मद नि सा नि ध प मग रे सा नि सा सा ध प मग रे सा नि रे सा अरज मोरी माँ नो तुम अरज मोरी मद नि सा नि रे सा नि ध पद नि ध म पद ग ग मग रे सा नि सा द द नि सा नि रे सा मग रे सा नि रे सा नि ध पद नि ध मग मद नि सा नि ध पद नि ध मग रे सा अरज मोरी माँ नो तुम अरज मोरी माँ। मेरी तान जहां पे खत्म हो रही है वहां पे मेरा मुखड़ा चालू हो रहा है अरज मोरी माँ अरज मोरी मानो तुम अरज मोरी मदने सनि द मगर सा अरज मोरी माँ सानि द मगर सने सा रे सा नि द मगर सने सा अरज मोरी माँ गवदनि सनि रे सा मगर सनि रे सनि द पद नि द मग रे सा अरज मोरी माँ नो तुम अरज मोरी माँ अरज मोरी राखो अब मोरी लाज राखो अब मोरी लाज तुम तो गरीब नवाज तुम तो गरीब नवाज आया हूँ तुम्हारे द्वार आया हूँ तुम्हारे द्वार रसदास अरज मोरी माँ नो तुम 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 अरज मोरी माँ सने द मगर सने सा अरज मोरी माँ सनि रे सा मगर सने सा अरज मोरी माँ नो तुम अरज मोरी माँ नो तुम दीन दयाल दुखी ज्ञान के दुख दूर करो तुम अरज मोरी माँ
नो तुम अरज मोरी मानो तुम अरज मोरी मानो तुम अरज मोरी मानो तुम अरज मोरी मान. So this is a beautiful bandish composed by, of course, none other than my Guruji Pandit Arun Kashalkar in Rag Bhagesri. Okay, so in this session we have learnt the chalan of Rag Bhagesri, the tans of Rag Bhagesri, and we have listened to the bandish of Rag Bhagesri and putting all those tans in that bandish. Okay, in all these things we have learned how to listen to Rag carefully and critically, so that how you should do critical listening and sing. Okay, now after this we shall discuss how do I take my regular classes, so that if you want to join my regular classes and if you are very very passionate about learning Indian classical music or karna hi hai, so I am always with you. Okay, so we will discuss how do I take regular classes, what are the timings, what are the fees, and all these things we will discuss right now. Okay, so as I have told you in the middle of the session that my classes are not once a week or twice a week or thrice a week. My classes are 9 times a week, 9 times. Okay, 9 times a week. The main motto of this session of keeping the classes 9 times a week is because I don't want to restrict you all to come to my classes. I am not that kind of a person जो क्लासेस में बोलते कि वंस इन अ वीक आना है तो इतना पैसा देना पड़ेगा, ट्वाइस इन अ वीक आना है तो उतना पैसा देना पड़ेगा, थ्राइस इन अ वीक आना है तो इतना पैसा देने पड़ेगा, और अगर क्लास के टाइमिंग्स आपके मिस हुए तो आपके क्लास हम अगर आप वंस अ वीक आते हो और अगर आप उस दिन आप नहीं आए तो आपको नेक्स्ट वीक ही आना पड़ेगा. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, सो आई डोंट वर्क इन दैट वे. आई फील दैट इट इज म्यूजिक एंड जितना भी मैं आपको दे सकूं उतना मैं आपको दूं, ना कि ये ऐसा कुछ मैं करूं कि इतना ही आना पड़ेगा उतना ही आना पड़ेगा. टिल माय क्लास at any point of time I don't want to do it unless there is a genuine reason, but I have not found any reason to stop people to coming to my class. ठीक है, तो मैंने ऐसे डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू मेनू कार्ड कि ये आप डिश लोगे तो इतना पैसा, ये आप डिश लोगे तो इतना पैसा, मुझे भरपेट खाना बहुत पसंद है. तो मैं क्या करता हूँ, किसी ऐसे बफे जहाँ पे बफे लगा होता है ना, वहां पे मैं जाके खाना खाता हूँ कि जितना चाहिए उतना लो, जितना नहीं चाहिए उतना मत लो, जितना भी मुझे चाहिए होता है मैं वो ले लेता हूँ, भरपेट खाना खाता हूँ. तो माई क्लास एम्स इनटू दिस कि मैं जो भी आपको सिखाना चाहता हूँ जितना आप ले सकते हो उतना आप लो. जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको वक्त मिले आप मेरे क्लास को अटेंड करो, और जब भी आपको वक्त नहीं होता है मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उस रिकॉर्डिंग से आप सीख लो. ठीक है, तो एक आधा क्लास अगर आपका मिस हो गया, इट इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल कि आप 9 में से 9 क्लासेस नहीं आ सकते हो, 2-4 क्लास आपके मिस हो गए, आप रिकॉर्डिंग सुनो जब भी आपको वक्त मिलता है, उससे सीखो और दूसरे दिन आ जाओ मेरे सामने, तो फिर मैं आपको करेक्ट करवाऊंगा. सेकेंड रीजन इज क्रिटिकल लिसनिंग, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि अगर आप 9 क्लासेस आके सुनते हो तो ये एक क्लास आके गाने से भी बहुत अच्छा है कि आप 9 क्लास आके सुनो. लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. जैसे आज हमने सुन के बागेश्वरी जितना मुश्किल राग है, बहुत मुश्किल राग है, ये हमने गाने की कोशिश की और गाया भी, बहुत सारे लोगों ने अच्छा गाया, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. तो वैसे ही इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आप अगर संगीत की दुनिया में हर रोज आते हो एंड व्हेन यू टच दैट नोट्स एवरी डे एंड इन फ्रंट ऑफ मी
you are bound to sing. So in order to make it result oriented and in order to give everything that I have for you, I take classes 9 times a week. इतना तो समझ में आ गया सबको कि I take classes 9 times a week. Okay. Now, what are the timings of these classes? The timings are in weekdays. आप ऐसे समझ के चलो, in weekdays timings are 3:30 p.m. and 7:30 p.m. 3:30 और 7:30. 3:30 p.m. in the afternoon, 7:30 p.m. in the evening. You can come to any or all the classes of mine. And Sunday 9 o'clock in the morning. I'll send you the schedule after you join my regular classes. So Monday, Tuesday, Wednesday, Friday 7:30 p.m. in the evening. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 3:30 p.m. in the afternoon. So you can come to maximum classes or any class or all the classes. I don't mind. I'll be the happiest if I see you in all my classes. You will earn my respect for sure. Nobody is going to tell you कि इतने सारे क्लास क्यों आते हो. सुबह शाम आ जाओ, no problem. Okay. This is how my Guruji has learned music. This is how I have learned music from my Guruji. कि उन्होंने कभी ऐसा restrict नहीं किया कि इतना ही पैसा देगा तो इतना ही करेगा वगैरह. Come on, we are music lovers, right? After that, someone has written something. I'll see that later. So let me focus on the point. Yeah, so that is it. So these are the timings, and I take classes this much. What are you going to learn? The same what we have learned today. Okay, in a much more personalized way. आज ऐसा है कि मैं सबको time नहीं दे पाया, but in my regular classes I focus on each and every one, and I make sure that you sing. Your only responsibility is come to classes. That is it. आपको कोई रियाज करना नहीं है, कुछ नहीं, जब तक मैं ना बोलूं. आपको मेरे सामने रियाज करना है every day. ठीक है? So your only responsibility is to keep coming to classes. Each and every sur, each and every tal, I'll take care of it. It is my responsibility as your teacher. Okay. So this is one thing I want to tell you. Now, regarding the fees, I have mentioned the fees of my class for 3 months. It's not 1 or 2 or 3 months. In 1 month, you get how many classes? 9 into 4, suppose 36 to 40 classes you get in a month. In 3 months, you get more than 108, 110 classes. Okay, so fees for hundreds of classes, and each session is of 1 hour. Okay, so it is more than 1 hour, not less than that. The fees for hundreds of hours of classes is very nominal. It is only 5,000 rupees, 4,999 to be precise. 4,999 for 3 months. Okay, it's not for 1 month or 2 months. It is for 3 months. Again, not only this 3 months, but you will be associated with me for lifetime, because this music has to be learned lifetime. So you will get a lifetime access to Swargyan Parivar Facebook group and Swargyan Parivar WhatsApp group. Okay, in WhatsApp group we have our day-to-day discussions on different ragas and bandishes, and in Facebook group you will get all the recordings of those hundreds of classes that you get, plus all the recordings of thousands of classes that has happened before of different ragas, and all the thousands of recordings that would happen in the future. So when I say that I am giving you all the things that I am doing, I really mean that. Right? So all the classes, all the recordings of all the classes are available in that Facebook group, and you will be a lifetime member of that particular Facebook group. Price only 4,999. 3 months of live classes of 100 hours, more than 100 hours, all the recordings, Facebook group, WhatsApp group, all the access.
you will get. Okay, and as a special offer in this particular session, if you enroll from this session, and the offer is valid today, in this particular session the offer is that along with all these things you will get my dedicated course on beauties of Yaman Rag. So I have wonderfully created this course on beauties of Yaman Rag, which costs 2000 rupees, completely free on enrolling today. Okay, price is 4999 rupees. Yes, yeah, please send the link. Yes, yeah. Please send all structure of class. Structure मुझे समझ में नहीं आया सतीश. Can you please tell me? You can unmute yourself. What do you mean by structure? सर मुझे कहना था कि क्लास में बेसिक से शुरू होगा या फिर डायरेक्ट राग गायकी शुरू हो जाएंगे थोड़ा सा मींस लाइक अलंकार नहीं अलंकार वगैरह. I am a strong believer to say that you don't need to learn alankar. You don't need to learn paltas biltas everything. आपने आज डायरेक्ट बागेश्वरी की तान गाई और बहुत अच्छी गाई, तो ये आपके दिमाग में अगर बैठ गया कि बागेश्वरी की तान कैसी है, तो फिर आप वो बागेश्वरी गा पाओगे. लेकिन अलंकार अगर आपने सीखा तो क्या होगा, आप बागेश्वरी में भी अलंकार ढूंढने की कोशिश करोगे. और बागेश्वरी इज नॉट सारेगामापधनिसा. बागेश्वरी इज अ ट्यून एंड ट्यून इज कॉम्प्लेक्स. सो उस कॉम्प्लेक्स ट्यून में अलंकार का कौन सा पैटर्न बैठता है, कौन सा नहीं बैठता है, ये हमको पता नहीं है. तो इसलिए मैं अलंकार बेसिक्स वगैरह मैं उसको जरूरी नहीं मानता हूँ. ओके, ठीक है. तो आप डायरेक्ट राग सीखोगे, जो आप परफॉर्म करोगे वही आप सीखोगे, नॉट एनी बेसिक स्टफ. ओके, या ओके, थैंक यू. सो और सर सब डिटेल कैसे ज्वाइन करना, लिंक वगैरह भेज दीजिए. या कैसे ज्वाइन करना है, यू कैन गूगल पे, फोन पे और एनी, इफ यू हैव एनी UPI ID. So Google Pay, Phone Pay, Paytm, तीन है we use on this particular number. 9767502002. This is Google Pay. Just please note down. I am also writing it over here. Google Pay, Phone Pay, Paytm. मेरा नाम हर्षद कांबड़े है, ठीक है. तो यहाँ पे हर्षद कांबड़े आ जाएगा. 9767502002. So the price, 502002. The price is 4999 rupees. And not to forget, if you enroll through this meeting, you get Beauties of Yaman Rag course completely free. Okay. So I have written down Google Pay, Phone Pay and Paytm number. This is my number. This is my personal number. 9767502002. Price is 4999, and everything that I have told you in whatever you get. My motive is you get maximum out of it. Okay. Yeah. Any other questions from anyone? क्लास कधीपासून सुरू आहे? Class will start from tomorrow, Monday. Okay. Monday 7:30 p.m. So let me write the timings also. Monday 7:30 p.m. Then Tuesday 3:30 and 7:30. ठीक है. Wednesday 3:30 and 7:30. Then you want the link, I'll send you the link. Okay, but I'm not going to send this in WhatsApp group. What you can do is you can message me privately, personally, on the in the WhatsApp group admin. जो मैं WhatsApp group admin है, उनको मैसेज करो कि मुझे लिंक चाहिए. If you want to pay through Google Pay, Phone Pay, you can have this link, or if you can pay through this number. और अगर आपको लिंक चाहिए
तो उसको कुछ तो 100 रुपये कुछ तो उसका वो रेजर पे का फीस है, उसके साथ आई सेंड यू द लिंक, मतलब दैट वो कुछ कटता है। सो दैट इज़ वाई आई प्रेफर कि आपका नुकसान ना हो, इसलिए 4999 यू कैन पे डायरेक्टली, और इफ़ यू वांट द लिंक इट्स अ सिक्योर्ड पेमेंट, यू कैन आई सेंड यू द लिंक ऑल्सो, प्लीज मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन। एक प्रश्न होता. या एक मिनिट मी टायमिंग्स लिहितो. थर्सडे 3:30 PM. Oh, sorry. It is 3:30 PM, and Friday 3:30 and 7:30 PM, and Sunday 9 AM. So सकाळी माझा क्लास झाला, Sunday 9 AM. Yeah, you can ask questions now. नाही, रेंज वगैरे वाढवायचं असेल तर डायरेक्टली राग वगैरे शिकणं चालू केलं हो, त्यात ऑटोमॅटिकली होऊन जाईल का? 100%, सब कुछ हो जाता है. सिर्फ आप क्लास में आ जाओ, सब कुछ होगा. रेंज भी बढ़ेगा, आपका आवाज भी सुधरेगा, आपके आवाज में वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, राइट? तो सब कुछ होगा. एवरीथिंग विल हैपन, दैट इज फॉर श्योर. बट एट द सेम टाइम इट रिक्वायर्स सम टाइम. ठीक है, पेशेंटली क्लास में आ जाओ कुछ दिन. शुरू में ना ये कैसा है, ये इन्वेस्टमेंट की तरह है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कि आज लगता है कि हम 1,000 डाल रहे हैं, 2,000 डाल रहे हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्यूमुलेट होके बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है. उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. इन द सेम वे म्यूजिक में भी शुरू में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि इट इज़ वेरी नाइस, कि अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, और फास्ट यू विल बी लर्निंग. आई विल सेंड यू द लिंक हियर ओनली, 1 minute. Yeah, for personal queries you can message me personally, no problem. Yeah, because ji, I'll send you the link. Okay, can you, those of you who want the link, I have not prepared the link. Can you please message me personally that I want the link to join the classes? I'll send you the 4,999 rupees link. Is it okay? Because नहीं तो फिर ये ऐसे टाइम चला जाएगा मेरा. Is it okay? Those of you who want the link, on any number, on either on my WhatsApp, ये जो WhatsApp ग्रुप में जो नंबर है वो वाला, या फिर 9767 वो वाला नंबर भी. So I'll send you the number also. ठीक है, 8329863445. This is my number, or this number. But payment you have to do on 9767 वाला number only. Okay, so please make sure that, क्योंकि दूसरे फोन पे ये है ही नहीं, मेरा गूगल पे फोन पे है ही नहीं. एनी क्वेश्चंस? समझ में आया आपको? प्लीज डोंट, पेमेंट करने की गड़बड़ में किसी और को पेमेंट मत कीजिएगा. दिस इज माई नंबर 9767502002. You can message me if you want the link. I'll send you the Razorpay link. Okay, let me again. I'm sending you the link, 1 minute. यही पे, अगर मेरे पास टाइम है. Again, if you have any questions, you can send me. Yeah.
So the link is prepared. I'm sending you over here. So let me copy the link. Let me paste it. So this is the link also. You can go ahead and make the payment over here. Yeah, मेरा एक मैसेज बाकी था कुछ टाइम करने का. Since we are working all 3:30 p.m. 3:30 classes are ruled out. Can you give us a different fee for 7:30? No. It is a buffet system. It is like it is not like 1-2. मैं फिर ideally I should give only 1 or 2 classes at this price, but I'm giving you all the classes. You attend all the classes, or you attend only one classes. The fees are the same. It depends upon you, and I'm giving you the recording of 3:30 p.m. classes, right? After these classes, it's 3 months. It is continuous. It is not batch wise. It is continuous. You're right. It is continuous. Yeah. Link मैंने भेजा है ना? Yeah. Do we need harmonium? No, Ruchi, we do not need harmonium. You need tanpura and tabla. Either app will also do from your mobile phone. It will do. So you will need tanpura and tabla. Both the apps are available. You will need that. You will not need harmonium. And Ruchi is also saying I started learning music from an institute. कुछ classes हुई थी, mom passed away. I'm sorry. I want to learn always, sir. Sing confidently, though I want singing, but now least confidence. It won't be able. If I won't be able to even listen to class recording, I'll fail you too. Yes, Tabla app is also possible. Tabla app is also there. There are apps like Sur Sadhak or I Shala, I Tabla. Those are also there. Yes, Kishori, I have batches after June also. You can join anytime you want, depending upon what happened that day, that particular day. सर Yeah. सर Yes, ते Vikas. हे ना ऍप आहे ना ते याचं तबल्याचं तर ते तुम्ही आयशाला वगैरे ते फक्त आयफोन साठी आहे आपल्या अँड्रॉइड साठी कुठलं आहे सूर साधक म्हणून आहे. सूर साधक ओके बर As Alok ji asked, people will be at different levels. So how would you take everyone along, sir? Wonderful question, Ashish ji. Dekho, when people are at different levels, Ashish ji and everyone, you learn more, because you learn not only from your guru but also from your guru bandhus. गुरुकुल सिस्टम में ऐसे ही होता था कि people are always at different levels. People don't start at same level. They're always at different level, and even after some classes, depending upon the capacity of each and every person, they will always be at different levels, right? So when someone is in the environment of where everybody is at different level, from each level you learn something, right? So you learn not only from your guru but also from your guru bandhus and bhaginis. राइट मैं जब क्लास में गया था तब मेरे 2 टाइप के बैचेस थे. एक जो जिनको थोड़ा बहुत आता था, 2 जिनको बहुत आता था. मैं दोनों क्लास में जाके बैठता था. तो जो मेरे गुरु बंधु है जिनको बहुत आता था, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, राइट? सो इवन दे गाइडेड मी इन दैट वे. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. किसी को कुछ भी नहीं आता है तो क्लास में कोई ना कोई तो होशियार होता ही है ना, फर्स्ट रैंकर होता है. तो फर्स्ट रैंकर के सानिध्य में रह के हम बहुत सीखते हैं, हाँ, स्कूल में, राइट आशीष? तो कोई फर्स्ट रैंकर होता है, कोई बहुत ही फेल हुआ रहता है. तो देर आर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड यू लर्न. मतलब वो जिनको बहुत अच्छा आता है उन्होंने ऐसा क्या किया, ये आप उनसे पूछ सकते हो. So there has to be people from different levels. Only then you can
learn. Kishori ji, it is not like a batch. I take fees of 3 months. My classes are continuously going on since last 3 years. Okay, I take fees of 3 months each. Not necessary that it's a batch. Okay, from the कोई भी कभी भी ज्वाइन करता है, समझो कोई अगर नेक्स्ट वीक ज्वाइन करता है तो वो उसी बैच में आते हैं, उसी क्लास में आते हैं, एंड वी ऑल इफेक्टिवली लर्न फ्रॉम ईच अदर. ऐसा है. सो व्हेन यू कम टू क्लास यू लिसन वंडरफुली. कि पहले तो शुरू में यू कैन नॉट सिंग, यू विल नॉट बी एबल टू सिंग such a complex music, but when you listen properly, when you dedicatedly come to class, when you listen, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है, आपको समझ में आने लगता है चीज़ें. तो जब मैं क्लास में जब गया था, मेरे फर्स्ट टाइम जब मैं क्लास में था, तब मुझे पहले 8 महीने तक मुझे गवाया ही नहीं गुरुजी ने. मुझे सिर्फ वो अच्छे लोगों को सुनाया और फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया. आज देखो लोगों को 20-20 साल जो करना पॉसिबल नहीं हो रहा है वो मैंने कुछ ही सालों में कर पाया. दैट इज बिकॉज ऑफ द तालीम दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माय गुरु, एंड दैट इज द स्किल, राइट. तो कुछ चीजें जो होती है वो अपने दिमाग में घुसती नहीं है, लेकिन टीचर को पता होता है कि वो क्या कर रहा है ऐसे. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कम टू क्लास. रेस्ट यू ऑल लीव टू मी, राइट. Got it. Okay. Yeah. So I have sent you the link. कौन लिंक पूछ रहा था? क्या विकास जी लिंक पूछ रहे थे? And someone else. Yeah, Samsung SMN777. That particular person, I don't know his name. So he was asking for a link. So I have sent you the link in this group. You can make the payment from that link also, or you can make the payment on my phone number 9767502002. Okay, after you make the payment, please let me know that you have made the payment, and then we can I'll send you all the links to join WhatsApp group, Facebook group. I'll send you the Yamanra course also. Okay. So this is the added bonus that I'm giving you if you join today along that. Okay, any other questions? So I'll tell you this offer ends today midnight. Is it fine? Today midnight you can make the payment today. Any other question? Is there any other question? No? Okay. Chalo, it was nice meeting you, and see you next time in the next session. Those of you who have not completed the course and not completed the homework, please complete the homework. Okay, irrespective of whether you are joining my class or not joining the class, keep learning. Keep learning. Don't lose that passion. Okay, bye bye, take care. This is Harshit Kamble signing off. Until we meet again.